Hello everyone, myself Parveen Yadav, working as an assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management. Today we are going to discuss about the commands related with files, sorting of the contents, searching of the particular content in the file, printing command, splitting, comparing. This is the topic from unit number 3 of the subject Systems Programming and System Administration from BTech 6th SEM, CSE 6th SEM. So today we are use this URL to run these commands. If any one of you have an Linux terminal or Unix OS in your system, then you are free to execute these commands on your operating system. So we are going to move. So basically till now we already working on such type of commands relating with the files, directory and all. How we create these directories, how we create files, how we add a content to the file. So basically today we are just move towards our terminal and then we start. So our terminal is cocal. So today we are going to create a file. Okay. By using touch command we create files like touch file1.txt. Next, by using cat command we create file as well as we also enter data in this file. Hello everyone, good morning. How are you? So here we have two files, that is file1.txt and file2.txt. Now we are going to check how many files we have there ls. So अब देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास two files है, file1.txt and the file2.txt. If you want to check the content in the file, then we run a command that is cat file2.txt. So here we have two files. First one we created by using the touch command, that is file1.txt. Second one we created with the file2.txt by using cat command and enter the data in it.
Here again we create a file, that is to file 2.txt, and here is the content, hello everyone, how are you. So now we are going to check the content in file. Then we use less than symbol and file name cat less than symbol file name dot txt. Now we are going to add the content in this file, that is cat double greater than file 2 dot txt. Here we have hello everyone, how are you. This one. Now welcome to SAITM. And now we out from the content. Now we are going to check the content in the file. So this is the content in our file, that is cat less than file2.txt, and the file contains hello everyone, how are you. Now we are going to run a command, that is unique command, file name file2.txt. As we seen here, all the contents are unique. Now we are using one command, that is cp file2.txt. Next one is file1.txt. Now we are going to check is the content of file2.txt is copied to the file1.txt or not. So by using cat command, you see there are the content of file2.txt is copied to the file1.txt. So cp is the command to use the to move to copy the content of one file to another file, and the another one command is move. And by using mv command, mv, then file2.txt, file3.txt. Now we are going to check the content in file 3.txt, that is get file 3.txt. Now the content is same as in the content in file.txt, file1.txt. But what is the difference between cp command and move command? Now we are going to check the content of file, that is this statement. We will go to run, and here you see no such file or directory. Means move command basically क्या करती है कि जो कंटेंट हमारे पास होता है उस कंटेंट को मूव कर देती है, सारे कंटेंट को किसके अंदर, जिसका जो भी हमने सोर्स फाइल दी है उस फाइल के अंदर। जबकि कॉपी कमांड क्या करती है, जो भी हमारे कंटेंट्स हो उन दोनों को अपने पास स्टोर करके रखती है। सो अब हम क्या करते हैं, जो हमने अभी तक डिस्कस किया था कैट फाइल 2 के अंदर, तो हम वहाँ पे एक यूनिक कमांड रन करते हैं। तो यहाँ पे हमने फाइल 3.txt कोई एक फाइल बनाते हैं यहाँ पे हम लोग, डेट इज दिस वन। यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेते हैं हम, और इसको हम इसका सिंटेक्स थोड़ा चेंज कर देते हैं, एक्सटेंशन इसका डॉट टॉक में रख देते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको नाउ वी राइट हियर हेलो एवरीवन इन SAITM, हेलो everyone in SAITM. And the second one, third line is GGN. So now we run unique command to check
the output file dot doc, and the file name is this. Now you see here, the first line carries hello everyone essay item, and the second one is the same content. So unique command basically does the gives us the unique output from the file. So these are the basic commands related with the to create a file, to check the content in the file, move the file, copy the content of a file from one place to another place. Unique command to get out them to carry out the unique of content from the file. One more command, first one is ls. So there are file 3.txt, file.doc और file1.txt. as we already discussed, move command जो हमारी थी उसने क्या किया था, file 2.txt कंटेंट्स को मूव कर दिया था, तो फाइल अभी यहाँ पे हमारे पास है नहीं. सो यहाँ पे अब एक फाइल को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, rm, और हम बेसिकली फाइल डॉट डॉक को यहाँ पे हम डिलीट कर देते हैं, फाइल डॉट डॉक. So remove command is to remove the file. Now we are going to run ls again, this one. So file.doc command is doc file is not in our terminal. Now we are going to create a file, uh, cat file sort dot txt. Here we have baseball, mm, tennis, cricket, lawn tennis, football, and the last one is basketball. Now we are going to sort the content of this file. फाइल का अगर हमें आउटपुट चेक करना है कि फाइल के अंदर क्या कंटेंट है, तो हम क्या करेंगे, कैट लेस देन फाइल सॉर्ट डॉट टीएक्सटी, तो हमें आउटपुट मिल जाएगा ये वाला. बट हमें क्या करना है, अभी कंटेंट को सॉर्ट करना है, तो यहाँ पे हम पहले कंटेंट को सॉर्ट करते हैं. उस बीच में हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे फाइल में कंटेंट है या नहीं है. सो यहाँ पे हम लोग इसको रन करते हैं, ये दिस वन. सो दिस मीन्स कि हमारे पास कंटेंट है फाइल के अंदर ऑलरेडी. अब हम सॉर्ट कमांड रन करते हैं टू सॉर्ट द कंटेंट ऑफ अ फाइल. सो सॉर्ट फाइल sort dot txt. Now you see the order of the content in the file. It's arranging in ascending order. So this command sorts the content of a file. So basically these are the some commands. Now we are going to सो हमने अभी तक यहाँ पे क्या किया, कॉपी हमारा हो चुका है, मूव हमारा हो चुका है, रिमूव ऑफ अ कंटेंट हो चुका है, क्लियर अभी बचा हुआ है क्लियर स्क्रीन करने के लिए, कैट हमारे पास हो चुका है, कैट फाइल. ठीक है. लेट्स फाइल हमारे पास क्या कमांड करते हैं, लेट्स कमांड क्रिएट्स the command less writes the content of a file onto the screen of a page at a time. ये हमारे पास तब वर्क करेगी जब हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा फाइल के अंदर, तो उसको एक पर्टिकुलर उसके अंदर शो करने के लिए हम लेस कमांड यूज करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक जो जो भी कंटेंट हमारा उस पर्टिकुलर स्क्रीन में शो हो जाए. उसके बाद हेड कमांड है, हेड कमांड का हम यहाँ पे यूज करेंगे अभी. हेड कमांड राइट्स द फर्स्ट 10 लाइन ऑफ अ कमांड. अभी हम यहाँ पे हमारे पास एक ही लाइन है, चलो अभी रन करते हैं हम अपने जो हमने अभी शॉर्ट कंटेंट किया है उसके, तो हम चलते हैं अपने टर्मिनल पे. दिस, सो वी हैव कमांड हेड फाइल sort dot txt.
अभी आप लोग देख रहे हो, हमने बोला था कि फर्स्ट 10 लाइंस को प्रोवाइड करती है हमें, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे वो 6 की 6 लाइन है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जस्ट 5 लाइन हमें शो हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 या 3 जो भी आप एड्रेस चाहते हो, -4। सो आप देख रहे होंगे डिफरेंस कि हमने क्या किया कि फाइल हेड, यहाँ पे उसमें हमने क्या किया, 4 को रन किया। तो यहाँ पे हमारे पास बेसबॉल, टेनिस, क्रिकेट और लॉन टेनिस, तो ये चारों चीज हमारे पास जस्ट 4 आई है। तो हेड कमांड हमारे पास बेसिकली क्या करता है, बाय डिफॉल्ट अगर हम उसको रन करते हैं तो वहाँ पे हमें वो कितना 10 लाइंस शो करती है हमारी फाइल्स की। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे उसको कुछ नंबरिंग प्रोवाइड करते हैं तो उतने नंबर ऑफ लाइंस वो हमारे पास वहाँ पे आउटपुट के अंदर शो करेगी। तो ये हमारे पास हेड कमांड है। सो बेसिकली इस टर्मिनल को अगर क्लियर करना है हमें, तो हमने कमांड अभी यहाँ पे यूज की थी, दैट इज क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो गया क्लियर, कमांड हमारी रन हो चुकी है। उसके बाद हमने अभी तक सॉर्ट कर लिया है, ये सारा कुछ कर लिया। एलएस से एक बार चेक करते हैं कि हमारे फाइल्स हैं या नहीं है। तो फाइल 3.txt भी है, फाइल 1.txt भी है, फाइल sort.txt भी है। हमने अभी तक ये किया है। इसके बाद अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड्स पर। तो ये आपका हो गया हेड कमांड। हेड कमांड हमने चेक कर ली है। टेल कमांड हमारे पास लास्ट लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी, तो भी टेल कमांड को भी रन करेंगे यहाँ पे। लेस कमांड आपको बता ही चुका हूँ मैं। देन हम मूव करेंगे अपने अ, हमने यूनिक कमांड की है। उसके बाद हम कंपेयर और डिफरेंस कमांड और चेक करेंगे, जो कि यहाँ पे है CMP एंड DIFF। यूनिक कमांड हम रन कर चुके हैं। सॉर्ट हमने कर लिया है, और स्प्लिट इसके बाद में करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले मूव करते हैं अपने टर्मिनल पर। सो फर्स्ट कमांड हमें कौन सी करनी थी, टेल कमांड। सो यहाँ पे हमने जो लास्ट कमांड रन की है, दैट इज हेड। सो यहाँ पे हम कर देते हैं अब इसको टेल। ये हमारे पास आउटपुट आ गया, लेकिन अब हमें पता कैसे लगेगा कि आउटपुट क्या है। तो मैं उसके लिए अपने एक बार कैट कमांड को यहाँ पे रन कर लेते हैं। जो हमारे पास कैट कमांड थी, sort फाइल sort.txt, ये आपकी थी। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने कौन सी कमांड रन की थी अभी, टेल -4 sort.txt। तो उसने कहाँ से शो करना स्टार्ट किया, क्रिकेट, लॉन टेनिस, लॉन टेनिस, उसके बाद फुटबॉल और बास्केटबॉल। ये हमारे पास सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो एक बार टेल कमांड को हम दोबारा रन करते हैं यहाँ पे। क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस एंड बास्केटबॉल। So these are the contents in a file sort.txt file. Now we are going to run the tail command, that is this one, tail false। तो यहाँ पे हमें क्या था कि बाय डिफॉल्ट वो कितनी प्रोवाइड करा था, 15 नंबर ऑफ लाइंस करा। बाय डिफॉल्ट वो हमें आउटपुट देगा, जनरेट करेगा हमारे लिए। बट अब हम चलते हैं -4 के लिए। ये इंडेक्सिंग हमने प्रोवाइड करा दी, तो लास्ट की जो 4 है, क्रिकेट, लॉन टेनिस, फुटबॉल और बास्केटबॉल, वो उसने यहाँ पे हमें आउटपुट एज आउटपुट दिया है। जो इससे पहले दे रहा था आउटपुट में हमारे पास, वो क्या था कि हमने कंटेंट को सॉर्ट किया हुआ था फाइल के अंदर। तो हम जो कंटेंट सॉर्टेड था हम उसको चेक कर रहे थे, ना कि जो हमारे पास फाइल के अंदर कंटेंट था हम उसको चेक कर रहे थे। तो इसलिए हमारा जो मिसमैच यहाँ पे हो रहा था। तो ये तो हो गया हमारे पास यहाँ पे। अब हम बात करते हैं कंपेयर। फाइल sort.txt में हमने कोई कंटेंट डाल दिया। एक और फाइल बनाते हैं यहाँ पे, कैट फाइल sort.doc। इसके अंदर हम लोग कंटेंट डाल देते हैं। फर्स्ट कंटेंट को हम सेम लगते हैं, हमारा है बेसबॉल। सेकंड कंटेंट है हमारा इस फाइल के अंदर टेनिस। थर्ड क्रिकेट है, तो हम उसको लॉन टेनिस कर देते हैं यहाँ पर। फोर्थ को हम फुटबॉल रखते हैं। जस्ट इतनी एंट्री करते हैं यहाँ पे। एंट्री को करने के बाद अब हम दो कमांड यहाँ पे रन करेंगे, CMP फॉर कंपेयर, फाइल sort.txt एंड फाइल sort.doc।
.doc. So here you see कंपैरिजन ऑफ टू फाइल्स. सो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो लाइन नंबर 3 में उसको फर्स्ट डिफरेंस मिला है, उसने कंपेयर करके बता दिया कि यहाँ तक हमारे पास जितने नंबर है वो सेम है, उसके बाद हमारा जो कंटेंट है वो चेंज है. तो आप यहाँ पे चेक करो, फाइल शॉट डॉट टीएक्सटी में बेसबॉल टेनिस और क्रिकेट को हमने यहाँ पे बेसबॉल और टेनिस को सेम रखा था, जबकि यहाँ पे जो थर्ड लाइन है वहां पे हमारे पास कंटेंट डिफरेंस है, तो उसने यहाँ पे हमें ये वाला आउटपुट दे दिया. उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंस कमांड की. अब ये चेक करोगे तो डिफरेंस कमांड हमारे पास बेसिकली क्या है, उसने यहाँ पे हमें रन करा के दिया 3D2. यहाँ पे क्रिकेट फर्स्ट जो चेंज मिला है उसको उसने वही उठा लिया जैसे क्रिकेट को. उसके बाद यहाँ पे उसने उसको करेक्टर्स को उठाया कि यहाँ पे फर्स्ट चेंज ये आया है क्रिकेट. देन हमारे पास सेकंड वन है जो वो लॉन टेनिस है, और उसके बाद वो फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों यहाँ पे फुटबॉल मैच करेगा उसको, और जो दूसरी में था वो यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया. मीन्स कि यहाँ पे उसने दोनों फाइल का डिफरेंस निकाल दिया कि फर्स्ट फाइल में हमारे पास ये है, सेकंड फाइल में मेरे पास ये कंटेंट है. तो ये हमारे पास हुआ है कंपेयर, डिफरेंस, सॉर्ट. नाउ वी आर going to clear our screen, that is this. Now to print the file, the command is lpr and file name file sort dot txt. सो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे उसने LPR कमांड को एक एरर जनरेट कर दिया, नो डिफॉल्ट डेस्टिनेशन. दैट मीन्स कि मेरा फर्स्ट वन तो यहाँ पे जो मेरे पास हम लोग ऑनलाइन टर्मिनल पे वर्क कर रहे हैं, दूसरा मेरे पास कोई प्रिंटर अवेलेबल नहीं है. तो ये मेरे पास LPR एक कमांड है जिसके थ्रू हम अपना कोई भी लाइनेक्स के अंदर कुछ भी अगर हमें प्रिंट कराना हो तो बाय यूजिंग LPR कमांड हम लोग उस कंटेंट को या उस फाइल को प्रिंट करा सकते हैं. उसके बाद एक है हमारे पास स्प्लिट फाइल. तो हम यहाँ पे इसी कमांड को रन कर लेते हैं और यहाँ पे हम split to split the content of a file in file 4.txt. सो यहाँ पे ये कमांड हमारी एक मिसस्पेल्ड के कारण ये हमारी हो गई है. यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्प्लिट. सो यहाँ पे अब हम चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर फाइल स्प्लिट हुई है, फाइल 4.txt में नहीं हुई है. तो आप ये देख रहे हो कि फाइल 4.txt ए करके यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट हो गई है हमारी, और उस फाइल के अंदर ये जो हमारे पास फाइल sort.txt में कंटेंट था वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगा. तो ये हो गया हमारे पास स्प्लिट से रिलेटेड कमांड और आपका प्रिंटिंग रिलेटेड कमांड. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं हमारा कमांड्स रिलेटेड विद जीआरईपी. बेसिकली जीआरईपी हमारे पास क्या है कि पैटर्न्स को मैच करने के लिए जो हम लोग रन करते हैं वो कमांड्स हमारे पास बेसिकली जीआरईपी होती हैं. जीआरईपी की फुल फॉर्म क्या है, रेगुलर ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट. अब यहाँ पे हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है, जीआरईपी साइंस डॉट txt. मीन्स ये क्या करेगी, जीआरईपी हैज प्रिंटेड आउट ईच लाइन. जिस भी लाइन में हमारे पास साइंस मिलेगा दिस फाइल के अंदर, वो सारी की सारी फाइलें हमारे पास वो प्रिंट हो जाएंगी. लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये केस सेंसिटिव है, तो वो डिफरेंस है हमारे पास कैपिटल एस और स्मॉल एस में. सो अगर हम चाहते हैं कि वो चीज हमारे पास हम लोग उस चीज को इग्नोर करें तो वी यूज आई ऑप्शन इन दिस syntax. So we are going to run these commands also. So first we are going to run um, first we are going to check the content in file1.txt. File one, sorry, so in file one we have hello everyone how are you, hello everyone how are you. Now we are going to run grep command, and every first grep file 1.txt. ठीक है, तो यहाँ पे हम इससे बाहर निकलते हैं अपने टर्मिनल से, उसको हम स्टॉप कर देते हैं. अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे जीआरईपी के अंदर
अपना कंटेंट डालते हैं everyone. Here you have output. We are running the command grep everyone file1.txt means हमने क्या किया grep के कमांड सर्च की रन की है जिसके अंदर हमने क्या कर रहे हैं everyone जो है उसको हम सर्च कर रहे हैं और कौन कहाँ पे सर्च कर रहे हैं file1.txt के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास दो जगह everyone मिला है तो उसने क्या किया वही दो लाइनें हमारे पास यहाँ पे एज अ आउटपुट जनरेट करके दिया जबकि नेक्स्ट लाइन है जो हमारे पास थर्ड वन वेलकम टू SAITM वो हमारे पास यहाँ पे उसने एज आउटपुट जनरेट नहीं किया है। अब यहाँ पे हमने बात की थी सिंटेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम तो वो भी हम देख लेते हैं एक मिनट। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया है स्मॉल ई। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारे पास उसने कुछ भी आउटपुट नहीं दिया है तो हम यहाँ से अब बाहर जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास रन करेंगे माइनस ऑफ आई। So by running the grep command with minus of y that means ignore अपर केस एंड लोअर केस तो वहां पे हमारे पास दोबारा से वही आउटपुट आ गया जो हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ था बाय यूजिंग grep कमांड। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ एक दो कमांड्स और बचती हैं लाइक वर्ड काउंट वगैरह वो भी अब देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। सो यहाँ पे हमारे पास है वर्ड काउंट। अब वर्ड काउंट करने के लिए हमारे पास एक WC कमांड है जिसको हम रन करते हैं। सो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि handy utility is the WC command short for word count to do a word count on science.txt type to find out how many lines the file has type. so वहाँ पे हम लोग लाइन के लिए क्या करते हैं L को बाई यूज करते हैं माइनस ऑफ L। सो अभी हम अपने टर्मिनल पे चलते हैं और ये लास्ट के दो कमांड है इनको रन करते हैं एग्जीक्यूट करके देखते हैं। WC W and the file one dot txt total number of word counts and word is 333 and word is 11 in file1.txt। तो यहाँ पे इसने टोटल दिखा रखा है मेरे पास कितने हैं 75। सो हेयर वी हैव अ फाइल दैट इज फाइल sort.txt और उसके अंदर ये हमारे पास कंटेंट है। हमने यहाँ पे वर्ड काउंट कमांड को रन किया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टोटल नंबर वर्ड्स आर 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड द टोटल नंबर ऑफ लाइन्स आर 6। ठीक है। अच्छा अभी यहाँ पे जो लास्ट फाइल में हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी वर्ड फाइल के रिगार्डिंग ही तो हम उस पे चलते हैं। वो कौन सी फाइल थी हमारी क्लियर के बाद हमने वर्ड फाइल file1.txt। सो यहाँ पे हम पहले file1.txt को कंटेंट उसका ले लेते हैं उसके बाद अब हम इस कमांड को देखते हैं यहाँ पे कौन सी कमांड थी हमारी वर्ड दिस वन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 11 वर्ड्स आर देयर इन file1.txt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 टोटल वर्ड्स आर देयर 13। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि कुछ एक कॉमन वर्ड्स हमारे पास जैसे ये दोनों डिफरेंस है तो 1 2 3 4 5 6 देन 7 8 9 10 और ये हमारे पास हर जगह सेम है और दिस वन इज 11। तो टोटल हमारे पास वर्ड कितने हो गए हैं यहाँ पे 11 और वहीं पे अगर हम लाइंस चेक करें यहाँ पे file1.txt में तो आप चेक करोगे कि हमारे पास आउटपुट जो होगा वो 3 है। तो यहाँ पे आपके पास कितनी लाइन है 3 लाइन है। सो टोटल बेसिकली जितनी भी हमने आज कमांड्स किए रिलेटेड विद द फाइल्स ऑलमोस्ट सभी कमांड्स कंप्लीट हो चुकी हैं जो हमने की हैं टू क्रिएट अ फाइल to add a content in a file, to output of a file, then split of a file, then sorting of a content in a file, then your unique command, then word count command, word count of word, word count of lines. So all of the commands related to the files are completed today. Thank you.